I have to start by saying this कि हमारे जो fathers हैं, we always, look at them like they're superheroes. बचपन से हमने देखा है and we're like, पापा को तो कुछ नहीं हो सकता. You have that feeling in you because they are the one, along with your mothers, of course, they've taken care of you. They've been that, the pillar of strength and your protectors in a way, right? But कहीं ना कहीं ये assumption कि नहीं पापा को क्या होगा, इन्हें तो कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ इवेंचुअली 40 की एज के बाद ना एक नजरअंदाज करने का एटीट्यूड, एक नेग्लिजेंस सॉर्ट ऑफ आ जाता है, सिर्फ हमारे फादर्स की तरफ से नहीं, इवन हमारी तरफ से, बिकॉज यू constantly have that thing going on in you. But I believe that's not something that should be there. And आज इंटरनेशनल फादर्स डे पर सिप्ला के इनिशिएटिव केयर फॉर हिम में दिस इज व्हाट वी वांट टू डू. हम रोशनी डालना चाहते हैं मेंस हेल्थ पर एंड स्पेसिफिकली प्रोस्टेट कैंसर पर, हाउ टू एक्चुअली कैच इट एट द राइट टाइम, ताकि सही वक्त पे सही ट्रीटमेंट भी मिल पाए. एंड फॉर दैट वी हैव Dr. Mudassir Ahmed, Senior Consultant Medical Oncologist at Fortis Hospital, Noida. Thank you for being with us here on Fever FM. And my first question to you, Doctor, कि क्या prostate cancer का खतरा सिर्फ 40 plus men को होता है? First of all, thank you for inviting me here. Being an oncologist, I will tell you that unfortunately most of the cancers जो है वो ज़्यादातर common होते हैं old age में. And father has a unique place and we have to take care of his health also, and we have to make him aware कि कौन कौन सी problems हो सकती है और कैसे कैसे हम उसको deal कर सकते हैं. So जो आपका question था कि क्या prostate cancer हमेशा older people में ही होता है, जैसे उसको बोलते हैं for more than 40 or more than 50 years. Yes, it's true. Most of the cancers actually common होते हैं in elderly. As the age increases, the chances of any cancer happening increase. Especially for the prostate cancer. Prostate cancer का होने का chance सबसे ज़्यादा होता है after the age of 60-65. But it doesn't mean कि उससे पहले नहीं हो सकता. Usually 40-45 के बाद देख सकते हैं. कुछ aggressive forms of prostate cancer are also present in earlier age also. राइट. सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आई एम श्योर बहुत लोग जानना चाहते होंगे कि प्रोस्टेट कैंसर को कैसे अवॉइड किया जा सकता है? जब हम अवॉइड की बात करते हैं तो दो कॉन्सेप्ट सामने आते हैं. एक होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन और दूसरा होता है स्क्रीनिंग. ओके, सो दोनों के बारे में कुछ ना कुछ मैं बोलूंगा. जो प्रिवेंशन होता है, प्रिवेंशन मीन्स दैट वी विल डू समथिंग नाउ which will not let the prostate cancer happen in us. दूसरा होता है screening. Screening means that we detect cancer at an early stage. So वो कैसे हम करते हैं? वो usually हम करते हैं by doing certain tests, by doing examination, या physician से मिलते हैं, history taking, etc. उससे हमें पता चल सकता है early. So, क्या हम कर सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए? मुझे लगता है प्रिवेंट करने के लिए दो चीजें जरूरी होती है. कुछ होते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, कुछ होते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स. मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स उनको बोलते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, अपनी जिंदगी से दूर कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं किसी तरीके से, जिससे ये कैंसर होने की संभावना बहुत कम हो जाए. दूसरा होता है नॉन मॉडिफाइबल, दैट वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट देम. फॉर एग्जांपल, इफ समबडी हैज अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट. है तो है. The same way, age, we cannot change our age. We cannot change genetics. We cannot change age. We cannot change family history. But we can change some things. For example, we can change obesity. That is our choice. कि ज़्यादा weight है, or cigarette smoking, alcohol, lot of alcohol consumption, cigarette smoking, chemical exposure, or कुछ ऐसी चीजें. So these are some things which can be changed. So क्या ये prevent कर सकते हैं? Yes, हम prevent कर सकते हैं by changing the modifiable risk factors. वो कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कि cigarette smoking, alcohol, chemical exposure, आजकल pollution भी, we don't know how bad this pollution will be, because this pollution is increasing with the increase in modernization, and how it will affect the cancer appearance, we don't know that. We'll only know that in future. But for the time being, I think we can do modify these risk factors so that it does not happen.
नंबर 2 इज स्क्रीनिंग. सो स्क्रीनिंग जैसे होता है कि डिजीज होने से पहले या होने के बिल्कुल अर्ली स्टेज में डिजीज को पकड़ा जाए. कुछ स्क्रीनिंग अवेलेबल है कुछ कैंसर्स के लिए. फॉर एग्जांपल इन विमेन वी हैव अ ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम. इन विमेन वी हैव अ सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम. इन मेन कुछ कैंसर्स के लिए स्क्रीनिंग है. वन इज लंग कैंसर एंड अनदर इज दिस प्रोस्टेट कैंसर. सो प्रोस्टेट कैंसर को स्क्रीन किया जा सकता है. मींस दैट हेल्दी लोगों को टेस्ट करने से या एग्जामिनेशन करने से हमें पता चल सकता है कि कैंसर अर्ली स्टेज में आया है या नहीं आया है. सो वी कैन डू दैट. प्रोस्टेट कैंसर में 2 तरह के टेस्ट अवेलेबल है. एक है, इसको बोलते हैं हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, एंड दूसरा चीज होता है PSA, ब्लड में एक टेस्ट करना, जिसको बोलते हैं सीरम PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन. सो ये दोनों चीजें हमें बता सकते हैं कि वेदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी और नॉट. क्या ये हर किसी को करने चाहिए? आई डोंट थिंक सो. नॉट हर किसी को. विद इंक्रीजिंग एज, फॉर एग्जांपल कोई मोर देन 50-60 इयर्स ऑफ एज है और अगर उनको कोई भी सिम्टम्स या कुछ ऐसे हैं जो किसी भी चीज से हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल यूरिनरी सिम्टम्स है, तो उनको जो यूरोलॉजिस्ट से जब मिलेंगे वो एक एग्जामिनेशन करेंगे और अगर उनको लगता है सो ही विल बी डूइंग ए सीरम PSA आल्सो. सो जो हमें बता सकते हैं कि कि ये कैंसर है या नहीं है, ताकि हम उस पे अर्ली स्टेज में उस पे कुछ करें. राइट. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मिलता जुलता है आपके ऑलमोस्ट कुछ जवाबों से फ्रॉम हियर कि इन प्रोस्टेट कैंसर अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल है. एग्जैक्टली क्या सिम्टम्स है? इफ यू कुड लिस्ट देम डाउन फॉर अस. Okay, so prostate cancer के symptoms are almost always, they cannot be isolated from other symptoms which can happen. For example, in urinary infection या कोई भी, फॉर एग्जाम्पल एक और प्रोस्टेट कैंसर से एक रिलेटेड डिजीज है जिसको हम बोलते हैं benign prostatic hyperplasia, जो एक बहुत ही कॉमन है इन एल्डरली पीपल एंड एल्डरली मैन. इज दैट प्रोस्टेट जो थोड़ा है वो मोटापा हो जाता है, उसमें वो थोड़ा मोटा बन जाता है, जिसकी वजह से यूरिनरी सिम्टम्स आ जाते हैं. सो कौन कौन से सिम्टम्स है ऐसे जो काइंड ऑफ यू कैन से कि जो हमें बताने चाहिए, वी शुड बी टेकिंग केयर ऑफ देम और वी शुड स्क्रीन फॉर प्रोस्टेट कैंसर इन दोज पेशेंट्स. वन इज डल पेन इन द लोअर पेल्विक एरिया, मतलब पेट के नीचे वाले हिस्से में डल पेन होना. फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जैसे दिन भर भी बहुत बार यूरिन के लिए जाना, रात भर भी जाना. सो दैट इज वन मोर. ट्रबल यूरिनेटिंग, फॉर एग्जाम्पल यूरिन अच्छी तरह से निकलता नहीं है, रुक रुक के आता है, ड्रिबलिंग है, पोस्ट ड्रिबलिंग है, या ऐसी पेन है ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, या बर्निंग सेंसेशन है, या फ्लो अच्छा नहीं है, ब्लड है उसमें, या एक और चीज है जो जिसको बोलते हैं पेनफुल एजैकुलेशन है, या पेन इन द लोअर बैक. कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो एडवांस प्रोस्टेट कैंसर्स में हो सकते हैं, जिसमें है फॉर एग्जांपल वेट लॉस. अगर सिग्निफिकेंट वेट लॉस है, अनइंटेंडेड सिग्निफिकेंट वेट लॉस, जो हम चाहते नहीं है और ये वेट लॉस हो जाता है, जैसे किसी को लाइक मोर देन 2-3 kgs ऑफ वेट और 5 kgs ऑफ वेट लॉस हो गए हैं पिछले 1-2 महीने में. सो इट शुड बी सिग्निफिकेंट इफ he has not intended to lose that weight. One more thing is that loss of appetite or pains, and especially the back pain. So they are important symptoms which can happen, which should actually prompt the physician that they should just check for the prostate cancer. Doctor also would like to know कि treatment के options क्या है when we talk about prostate cancer. Okay, so prostate cancer को treatment के लिए we have to understand that treatment depends on the stage of the prostate cancer. Let us say very early stage, जो screening के बाद पता चला, that means the patient had no symptoms, और screening से हमें पता चला कि yes, there is prostate cancer. It's a very low risk or very low stage prostate cancer. उसमें एक option होता है that's called as active surveillance, that we will not do anything. Okay, we'll only examine the patient and just follow up the patient every few months, and we'll continue that, and that is the treatment. Okay, and we will treat this cancer only when it causes problems or when it starts growing too much. So that is one option. Another thing is that at a very early stage of prostate cancer, it can be completely cured by surgery or by radiotherapy. Right. So surgery, we can understand that कि उस prostate को remove किया जाता है,
which can be open prostatectomy, or which can be robotic prostatectomy, or laparoscopic, or we use minimal access the prostatectomy. और दूसरा है रेडिएशन थेरेपी. रेडिएशन थेरेपी इज ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर विद द हेल्प ऑफ स्पेशल रेडिएशन. सो वो भी हम यूज कर सकते हैं, और दे आर वेरी सक्सेसफुल. एंड विच ऑफ द टेक्निक टू यूज, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि स्टेज और बाकी पैरामीटर्स क्या है. अगर प्रोस्टेट कैंसर थोड़ा सा ज्यादा एडवांस है तो उसमें हम यूजुअली क्या करते हैं कि एक तरह का थेरेपी जिसको बोलते हैं हम एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी. सो ये एक तरीका होता है कि उससे क्या होता है कि जो पेशेंट, जो उस मेल के बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन है उसको खत्म किया जाता है. उसको कैसे खत्म करें, दो तरीके हैं. एक सर्जिकल होता है और दूसरा इंजेक्शन के जरिए होता है. सो उन दो तरीके चुन सकते हैं, और यूजुअली इसके ये करने से प्लस रेडिएशन करने से ट्रीटमेंट हो जाता है. फिर होता है बहुत ही एडवांस्ड स्टेज. बहुत ही एडवांस स्टेज जिसको बोलते हैं 4th स्टेज प्रोस्टेट कैंसर के लिए हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन एंडोक्राइन थेरेपी, या उसको बोलते हैं हार्मोनल मैनिपुलेशन. एंड दूसरा होता है टारगेटेड थेरेपी इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स और इंजेक्शंस. एंड थर्ड इज कीमोथेरेपी, व्हिच वी यूज समटाइम्स. And nowadays there is a new type of therapy which is called as immunotherapy. In certain cases, very rare cases, we can use that also, but it is coming up very fast. All right. Before we let you go, एक बहुत ही common question है which can probably be very enlightening for anybody जो prostate cancer से गुजर रहे हैं या जिनकी family में कोई है who has this problem. क्या prostate cancer के मरीजों और survivors के लिए normal life जीना possible है? Absolutely. The answer is absolutely yes. So क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने आपको जैसे बोला कि a very early stage में who knows, we will only do active surveillance, not do anything else. We'll just check the patient every few months and that's it. So they can live their complete normal life. Even if we have to do something like we have to do surgery or we have to do radiotherapy, most of the patients will do absolutely well if it is done by very good hands, and if it is taken care of by specialists. Most patients will do absolutely well, and they will live their normal life with absolutely less or least side effects. The only problem happens if it is advanced. If it is advanced, then it cannot be cured in an advanced stage. So in the advanced stage, our aim remains that the patient should live longer, and patient should live comfortable life, and that is possible. That is new things which are coming up in the prostate cancer are absolutely mind-boggling. Every day, every month, we have a new treatment coming up. I think it's a astonishing time for the prostate cancer because many new treatments are coming up. Right, that's really good to know. Whoever's watching this right now, please अपने आप को educate करें, अपने आसपास वालों को educate करें about this. It is important that we take care of our fathers, which is why Cipla और Fever Apple के साथ show that you care with #care4him. Thank you so very much, Dr. Mudassir Ahmed, for being with us, for enlightening us about everything we needed to know about prostate cancer. Thank you for your time. Thank you very much. Thank you very much. It is wonderful to talk to you and talk to all of you who are watching. Bye-bye.